everyone. See, sensitivity analysis is a technique. It's a technique of focusing the attention of the management on critical variables. Critical variable means what, beta? It's very important variables, which is very important, which affect our NPV, which affect our net present value, right? So the management have to pay special attention on those variables, those factors, right? Where additional analysis is beneficial. Where what, bacha? Additional analysis is beneficial for the projects. So the very important thing is what? Net present value. We have to consider the net present value. We have to see the net present value. And net present value, everyone knows the formula of net present value is what? What is the formula? Net present value is equal to present value of cash inflow minus present value of cash outflow. That you have to remember it. So, bacha, what does it say? It says sensitivity analysis is a technique. It's what, beta? It's a technique of focusing the attention. मतलब यहाँ अटेंशन किसका रहेगा? मैनेजमेंट का रहेगा ऑन क्रिटिकल वेरिएबल्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जिसकी वजह से हमारे एनपीवी पे इफेक्ट पड़ेगा, which affect our NPV. So the management have to focus on those variables, those factors. अब वेरिएबल्स और फैक्टर्स मतलब क्या? लाइक एग्जांपल ले लो. अभी आपको 3 एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं फैक्टर्स के, ध्यान से सुनना. फर्स्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट? सेकेंड ले लिया हमने कैश इनफ्लो. थर्ड ले लिया हमने चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? प्रोजेक्ट कॉस्ट, कैश इनफ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. These 3 are factors. अब management have to consider which factor is more sensitive. Which factor is more sensitive? उसके ऊपर management क्या करेगा? फोकस करेगा. उसके लिए उसको sensitivity analysis करना पड़ेगा. अरे जो factor more sensitive है उसके ऊपर management को फोकस करना पड़ेगा, because that is the big concern for the management. Okay, like see, simple example. If a factor project cost, right, is more sensitive, कभी होगा वो ध्यान से सुनना. अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अब समझो प्रोजेक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा परसेंटेज राइज हो रहा है, स्मॉल परसेंटेज राइज, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कॉस्ट बढ़ गया. कितने परसेंट से? ओनली 2%. ओनली व्हाट बेटा? 2% से बढ़ गया. बेटा इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट राइजेस बाय 2% और वो 2% बढ़ने की वजह से अपना एनपीवी 0 आ गया, क्या एनपीवी डाउन हो गया? सिर्फ 2%, ओनली 2%. 2% मीन स्मॉल चेंज होने की वजह से अपना एनपीवी 0 आ गया. तो दैट इज द बिग कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट. दैट इज रियली अ बिग कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट हैव टू फोकस ऑन दिस फैक्टर, राइट है? तो उसके लिए मैनेजमेंट को एडिशनल एनालिसिस करना पड़ेगा, वेयर द मैनेजमेंट हैव टू डू द एडिशनल एनालिसिस कि भाई प्रोजेक्ट कॉस्ट में अगर थोड़ा सा भी राइज हुआ, थोड़ा सा भी इसका कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो अपना एनपीवी 0 आ जाएगा. तो उसके लिए मैनेजमेंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या होना चाहिए, पूरा एडिशनल एनालिसिस वो सब मैनेजमेंट को करना है, राइट? सो सेंसिटिविटी एनालिसिस में मेनली क्या आपने को देखना है? अनफेवरेबल चेंजेस क्या हो रहा है. अनफेवरेबल, फेवरेबल हुआ तो कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न. लेकिन अनफेवरेबल चेंजेस हुआ और अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से आपका एनपीवी डाउन हो गया, तो दैट इज द बिग कंसर्न, राइट? सो देखो इधर पॉइंट में भी दिया है. पहला तो मैंने बता दिया, फोकसिंग द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑन क्रिटिकल वेरिएबल्स, and it shows where additional analysis, it shows what beta, where additional analysis is beneficial. Yes, additional analysis is beneficial for the projects. Here we have to think about unfavorable projects, means unfavorable changes. वो projects में जो unfavorable changes है, unfavorable condition है, that we have to think. Means sensitivity analysis में आपको unfavorable changes क्या हो सकता है future में, वो सोचना है, right? So here we have to think about unfavorable changes or conditions. That is, what unfavorable changes bring our NPV to 0. क्या unfavorable changes है जो अपने NPV को 0 पे लाके खड़ा कर देगा? So that is what unfavorable changes bring our NPV to 0, and how much percentage change, how much
how much percentage change will bring our NPV to zero? That is the big concern. That is the major concern. कि अगर अनफेवरेबल चेंज है, जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट है, बेटा कॉस्ट अगर इंक्रीज होगा तो अनफेवरेबल है, कॉमन सेंस है, राइट है. तो अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 2% से खाली राइज हो रहा है, ओनली 2%, तो सोचो हमारा एनपीवी जीरो आ रहा है. और 2% राइज होना इट्स कॉमन, मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो मैनेजमेंट को रीथिंक करना पड़ेगा कि भाई उस प्रोजेक्ट में पैसा डालना है कि नहीं. So this is the additional analysis which management have to rethink, right? Before investing in projects. So they have to consider, they have to think about unfavorable changes or condition, right? Unfavorable changes or condition. That is what unfavorable changes bring our NPV to zero. Clear है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना. अनफेवरेबल चेंजेस, वो अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से अपना एनपीवी जीरो आ गया, तो दैट इज द बिग कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट. ओके, सो ये तो ठीक है. अभी देखो इसमें इसी का कंसेप्ट जो है बेटा, सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ डैमेज. ठीक है, अभी ये टॉपिक क्या बोल रहा है, ये पॉइंट कि सेंसिटिविटी एनालिसिस, अगर आप ऐसे एनालिसिस करोगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस, एडिशनल एनालिसिस, तो इट हेल्प्स टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस. मतलब आप फिर अपने जो इन्फ्लुएंसेस है, बराबर है, जो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस है उसको मिटिगेट कर सकते हो. आपको मालूम पड़ गया कि थोड़ा सा चेंज, अ स्मॉल चेंज इन प्रोजेक्ट कॉस्ट विल ब्रिंग आवर एनपीवी टू जीरो. तो मैनेजमेंट ने पूरा कंसिडरेशन किया कि भाई ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो पूरा एनालिसिस करके वो अपना एक डिसीजन लेगा, जिसकी वजह से उसका जो बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसेस है, सिवियरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स वो रिड्यूस होगा. सिवियरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विल गेट रिड्यूस, रिस्क रिड्यूस होगा. दैट इज व्हाई सेंसिटिविटी एनालिसिस इज डन. सो इफ परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर विल बी लेस, हमेशा याद रखना, ये देखो ये कंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके. इफ परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर, परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर विल बी लेस, then the project is more sensitive. अभी मैंने बताया ना, like project cost में only 2% change हुआ, तो that is the big concern. क्योंकि थोड़ा सा change, little bit change, थोड़ा सा change आपके एनपीवी को जीरो लाके खड़ा कर रहा है. बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है. इट्स अ बिग मैटर, इट्स अ बिग कंसर्न कि थोड़ा सा चेंज हुआ तो आपका एनपीवी जीरो आ रहा है बेटा, थोड़ा सा चेंज, राइट? सो दिस इज द बिग कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट. इसका मतलब क्या हो गया कंक्लूजन, कि अगर परसेंटेज चेंज विल बी लेस तो द प्रोजेक्ट इज मोर सेंसिटिव. याद रखना, ये कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ परसेंटेज चेंज इज लेस और उस परसेंटेज चेंज की वजह से आपका एनपीवी जीरो आ रहा है, उसकी वजह से आपका एनपीवी जीरो आ रहा है, तो दैट प्रोजेक्ट इज मोर सेंसिटिव. रिमेंबर इट, दैट प्रोजेक्ट इज व्हाट, मोर सेंसिटिव, एंड वाइस वर्सा. आप समझो, एक और एग्जांपल लेते हैं साइड बाय साइड. अब प्रोजेक्ट कॉस्ट में रिमेंबर इट कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में 2% नहीं 50% चेंज होगा. 50%, और 50% चेंज होना मार्केट में ये बहुत बोलते ना, इट्स नॉट, आप इसको बोल ही नहीं सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल. 50% इट्स नॉट पॉसिबल मैन, राइट? 50% तुरंत चेंज हो नहीं सकता, 100% तुरंत चेंज हो नहीं सकता. अभी पार्ले जी का बिस्किट आज 5 रुपए का, आज 5 रुपीज का है, तो तुम बोलोगे कि 2 दिन के बाद वो 10 रुपए का हो जाएगा. नहीं, इतना चेंज नहीं हो सकता बेटा, 5 से 6 हो जाएगा, बट डायरेक्ट 10 रुपीज होना ये पॉसिबिलिटी नहीं है. समझा कि नहीं? तो वो मैनेजमेंट के लिए बिग कंसर्न नहीं है. इसका मतलब क्या, अगर ज्यादा परसेंटेज चेंज हुआ, जैसे 50% चेंज होने की वजह से एनपीवी जीरो आ रहा है, तो वो मैनेजमेंट के लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है. मैनेजमेंट के लिए बड़ा कंसर्न क्या है, थोड़ा सा चेंज, अरे 2% चेंज हो गया और मेरा एनपीवी जीरो आ रहा है, दैट इज द बिग कंसर्न. वो सबसे बड़ा कंसर्न है मैनेजमेंट के लिए. तो मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को उसके बारे में ज्यादा सोचना है, राइट है? दैट इज व्हाई अ स्मॉल परसेंटेज चेंज, राइट है, याद रखना, स्मॉल परसेंटेज चेंज, इफ स्मॉल परसेंटेज चेंज bring our NPV to zero, then that project is more sensitive. याद रखना, then that project is more sensitive, and vice versa, right? तो एग्जांपल जैसे देखो, एक एग्जांपल ले, अभी आप बताना मेरे को कौन सा प्रोजेक्ट इसमें मोर सेंसिटिव है. प्रोजेक्ट कॉस्ट में समझो परसेंटेज चेंज हुआ है 10%,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल में परसेंटेज चेंज है आपका 15%, राइट है, 10% चेंज, 15% चेंज, और कैश इनफ्लो में चेंज है आपका 20%। नॉर्मल चेंज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10%, 15%, कितना बोला, 10%, 15%, 20%, ठीक है, ये 3% बोला। अब इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट मोर सेंसिटिव है, कौन सा प्रोजेक्ट मोर सेंसिटिव हुआ? नॉर्मल सी बात है, जिसमें थोड़ा सा चेंज, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अनफेवरेबल चेंजेस अपने को देखना है बेटा, व्हाट वी हैव टू सी, अनफेवरेबल चेंजेस ओनली। तो कौन सा थोड़ा सा चेंज हो रहा है? यस, 10%, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर आल्सो, वेरी नाइस बेटा। सो 10% इज व्हाट लिटिल बिट चेंज, कम चेंज होने की वजह से हमारा एनपीवी 0 आ रहा है, तो दैट इज द बिग कंसर्न। वो 20% वाला नहीं देखेंगे, क्योंकि इधर 10% छोटा सा चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज इज देयर, एंड स्मॉल, इफ स्मॉल परसेंटेज चेंज bring our NPV to 0, so that is the big concern, that is the major concern for us, clear? So if small percentage change bring our NPV to 0, then that project is more sensitive, yaad rakhna, and this is the very important conclusion you have to write after the solution, right है, जब आपका solution होगा, जब क्वेश्चन करोगे, तो ये खाली कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर पूरा मार्क्स, वो बेस है समझो, कंक्लूजन, लेकिन लिखना लास्ट में बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर गलती से भी, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर ज्यादा चेंज है तो ज्यादा सेंसिटिव, वैसा नहीं सोचने का भाई, ये फंडा नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये, ठीक है। मतलब क्या सोचेंगे, अरे परसेंटेज ज्यादा चेंज हो रहा है तो ज्यादा सेंसिटिव, नहीं, लॉजिक समझने का, लॉजिक, ज्यादा चेंज होना मार्केट में पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, राइट है, तो वो हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है, समझा कि नहीं? हाँ, अगर थोड़ा चेंज, थोड़ा बहुत स्मॉल चेंजेस इज पॉसिबल, वो तो मार्केट में होते रहता है, और उस स्मॉल चेंज की वजह से वो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपके एनपीवी को 0 करेगा, तो वो आपके लिए मेजर कंसर्न है, और एनपीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीवी शो करता है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो कभी भी पॉजिटिव एनपीवी हुआ, if there is a positive NPV, then only you have to invest in projects, otherwise no need to invest in project, don't accept that project, right? So this is the funda। देखो एग्जांपल मैंने दिया है, वैसे भी समझा दिया है, वही एग्जांपल है, देखो एग्जांपल इज व्हाट, if factors or variables like project cost, if factors or variables like project cost increases by a small percentage, increases by what beta, a small percentage, which will bring our NPV to 0, so the project cost factor is a major concern। अभी यही बताया ना बेटा, same example I have discussed here। So the project cost factor is a major concern for the organization, because small change in project cost, a small percentage change in project cost will bring our NPV to 0, so that is the big concern for the management of the organization, beta। So therefore, to control the influences, what, therefore to control the influences, to control the impact of influences, the sensitivities are analyzed, okay? So this is what sensitivity analysis, beta, everyone have to remember it, that what, see, simple, that sensitivity analysis, it's a technique of focusing the attention of the management, technique of focusing the attention of the management on critical variables. Critical variables are those variables which affect our NPV, which affect our NPV, means which will bring our NPV to 0 if there will be a small change, and those small change percentage will bring our NPV to 0. So that will be the critical variables, critical factors. So management have to focus on this factors, right? So thus what will happen? So management have to rethink about it. Management have to do the additional analysis, everything. So everyone have to remember this, that sensitivity analysis is what, it's a technique of focusing the attention of the management on critical variables, and therefore it shows where additional analysis is beneficial. So additional analysis is very important in case of sensitivity analysis. And the very important point is this one, that here we have to think, what we have to think, we have to think about unfavorable changes. What we have to think, beta,
फेवरेबल चेंजेस के बारे में नहीं देखना इधर, अनफेवरेबल चेंजेस। लाइक प्रोजेक्ट कॉस्ट में अनफेवरेबल चेंजेस क्या होगा अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट राइज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अनफेवरेबल चेंजेस क्या होगा अगर राइज हो गया, रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट में अनफेवरेबल चेंजेस क्या होगा, रनिंग कॉस्ट राइज हो गया। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो में अनफेवरेबल चेंजेस क्या होगा अगर कैश इनफ्लो फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया, दैट इज व्हाट अनफेवरेबल चेंजेस। कैश इनफ्लो को भी राइज मत कर देना, वो अनफेवरेबल नहीं है, वो राइज होगा तो फेवरेबल हो जाएगा बेटा। ओके, सो here we have to think about unfavorable changes or condition, that is what unfavorable changes bring our NPV to zero and how much percentage change will bring our NPV to zero। ये तो नॉर्मल देखा। फिर आपने देखा कि it helps to mitigate what, it helps to mitigate the impact of influences, yes, and then you have seen what, if percentage change in any factors, if percentage change in any factor will be less, then those project will be more sensitive and vice versa। Example भी देख लिया, if factors variables like project cost increases by a small percentage which will bring our NPV to zero, so the project cost factor is a major concern for the organization। yes, थोड़ा सा चेंज हमारे एनपीवी को जीरो ला रहा है तो वो मैनेजमेंट के लिए बिग कंसर्न है, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है मैनेजमेंट को। देयरफॉर टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंसेस, जो भी इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस होगा उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू एनालाइज, राइट, वी हैव टू डू द एडिशनल एनालिसिस, वी हैव टू डू द सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो दिस इज द कंसेप्ट which you